Meera. Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. And if you're new to my channel, then please subscribe to my channel. Click on the bell icon to get daily notification when I post the video. So today's video is about this book review, A Thing Beyond Forever, and it's written by the bestseller of the Times novel, Navaneel Chakravarti. And yeah, this book is quite amazing and quite you will feel like sometime boring and sometime twisted so much, and sometime oh my god, it's going to be so philosophical and so based on the real life theories. So yes, स्टार्ट करने से पहले रिव्यू को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज भी नॉइज़ आएगी, सो प्लीज़ अवॉइड दैट नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एंड आई डोंट नो till when it's going to be completed. So yeah, so this book I came across, this is the first book I read from novel, just confused about the name. The name is so unique, Navaneel Chakravarti. So ये book का जो topic है वो थोड़ा different topic लिया गया है, because it not like it's providing a love story concept. No, it's providing a concept about reincarnation also. So and for that you have to read the whole book, because I'm not going to disclose the whole story towards you, and but I will disclose some of the part of the story. So yeah, the story revolves around three people in this book, and the three people are Radhika, Dr. Radhika, Ryan and Savera, and they are friends like Dipali and Adidash and Insane and Unique, and there are more. So you can I'm just going let you know the characters also. And there's a boy, 9-year boy, which name I guess, yeah, Lay, Laye. Maybe I pronounced it wrong, so that's why I'm spelling it for you. So yeah, so ये जो story है ये थोड़ा flashback में और थोड़ा फिर प्रेजेंट में और थोड़ा पास्ट में इस तरह से स्टोरी रिवॉल्व कर रही है जितने भी है. एंड इस स्टोरी को देख के लग रहा है इट्स बेस्ड ऑन द रियल लाइफ, एंड मे बी ये किसी की लाइफ का पार्ट हो सकती है ये नॉवल, या फिर मे बी इट हैपन दिस वॉट एवर डिस्क्राइब्ड इन दिस, मे बी it happened sometime, or maybe it was like something like it's sort of like it feels like truth, reality type. ये जो स्टोरी है वो रियलिटी टाइप को एक तरह से पोर्ट्रे कर रही है. सो एक स्टोरी स्टार्ट होती है टू ड्रीम a sudden dream of a girl, which she got that dream almost every day, and she just wake up from the dream and get a panic kind of a thing. So राधिका है बेसिकली, उसका पार्ट ज़्यादा है इस बुक में. सो वो जो है वो एक डॉक्टर बनती है, और स्कूल टाइम की उसकी कोई स्टोरी है यहाँ पर. शी गॉट फॉल इन लव विद the boy Ryan, and she got committed to him, and then she knows then the कुछ एक्सीडेंटली डेथ हो गया रायन का, और उसके फ्रेंड का भी और रायन का भी. एंड राधिका के मॉम डैड भी नहीं थे, दे ऑल्सो लेफ्ट हर अलोन in an accident. So maybe not, but yeah, she is alone. But उसकी जो गाइडर थी, उसकी जो मेंटोर थी, she was living in a hostel, तो उसकी मेंटोर थी, I could not recognize the name, sorry, but yeah, there was her mentor also जो उसको गाइड करती थी और बचपन से रखा था, और बचपन से उसको अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना बताना क्या अच्छा है क्या नहीं. एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू एफर्मेट फॉर हर इज शी इज़ अ गुड person in academic and in everything. So she is like not more this unique one, she is like the more different one. So उसको ड्रीम्स आते थे डेली बेसिस पे, एंड देयर वाज अनदर गर्ल सवेरा, एंड सो उसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी रिवॉल्व करती है. दे गॉट रायन एंड राधिका गॉट विद ईच अदर, बट स्टिल सवेरा वाज देयर अराउंड रायन एवरी टाइम. एंड यू फॉर दैट व्हाट काइंड ऑफ राउंड दैट वाज, यू वुड हैव टू रीड दिस बुक फॉर दैट. और मुझे तो लगता है ये बुक आपको रीड करनी चाहिए. बट द थिंग इज़, अगर आप इमोशनली अपने आप को काफ़ी ब्लॉक फील करते हैं जब भी आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, या जब भी आप कोई ऐसी स्टोरी पढ़ते हैं विच इज़ लाइक हार्ट ब्रोकिंग, और विच इज़ लाइक ओ माई गॉड दिस स्टफ इज़ सो रूइनिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन, तो आपको ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए. मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो यहाँ तक का जो पेजेस हैं बुक के वो इस तरह से हैं कि पर्सन कैन थिंक लाइक कि यार एक तो ज़िंदगी वैसी ऐसी चल रही है, ऊपर से कुछ और इमोशनल स्टफ ले आओ, तो इट्स लाइक ओ माय गॉड. एंड इफ़ यू आर अ इमोशनल फूल काइंड ऑफ पर्सन, सो जस्ट डोंट गो फॉर दिस बुक, बिकॉज दिस बुक has 2, 3, 5 departure of the person people
from the life. Okay, so it's up to you if you want to read or if you don't want to read this book. But this book has a nice cover, so, and has a nice description review. If you will go to check it online, you will get a nice description review of this book. So इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पेडोफाइल कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें पेडोफाइल कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो राधिका है, जब ब्रायन की डेथ हो जाती है तो उसके 19 years बाद, व्हेन शी बिकेम अ डॉक्टर, व्हेन शी कीप लिविंग अलोन, एंड लाइक उसके सारे कलीग, सारे फ्रेंड्स, दे आर मैरिड बट शी इज़ अलोन दैट टाइम ऑल्सो. तो यहाँ पे उसको एक पेशेंट मिलता है जो कि एक्चुअली किसी और का पेशेंट होता है, बट उसका पेशेंट मिलता है. तो इसमें ना जो फॉर्मेट है वो कुछ डायरी काइंड ऑफ स्टफ में है, लाइक डायरी, जैसे जो डे टू डे डायरीज लिखते हैं ना लोग, उस टाइप का स्टफ है. सो द फॉर्मेट इज़ लाइक दिस. तो ये रायन की डायरी भी पढ़ती है, जो नर्स ने छोड़ा था कि रायन ने यहाँ छोड़ दी है, जस्ट गिव इट टू द पेरेंट ऑफ. राधिका को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि उसके पेरेंट्स को दे देना, बट वो पेरेंट्स को नहीं देती, वो अपने पास ही रखती है. शी गॉट दैट डायरी. सो उसके बाद फिर वो ऐसी उसके जब वो पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके लिए अपनी ड्राइंग बुक छोड़ के जाता है. तो हियर्स द ट्विस्टिंग प्लॉट स्टार्ट कि जो इनिशियल सिग्नेचर्स होते हैं दोनों के, रायन के और लेके, they are actually same. As you know, your signature is as different as your DNA. So yeah, that's the thing is, so she just think about it's just a coincidence or just something else. तो उसकी वो तहकीकात पे शुरू हो जाती है, वो लेके घर जाती है, फिर उसको और भी चीज़ें दिखती हैं, उसको उसकी स्लैम बुक दिखती है. स्लैम बुक जो उसके पास थी, आई गेस, आई थिंक थी, या उसने फिल्डअप करवा रखी थी, जो भी वो है. तो स्लैम बुक में दोनों रायन और ले, दोनों की स्लैम बुक same thing, same concept and same pretty things they have brought to Radhika. So it's the same, another second coincidence, and third coincidence which I read about it, they got a photograph at Lay's house, and the photograph is of Savera. And Savera, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे रायन वॉज कन्फ्यूज अबाउट सवेरा, दैट वॉट सवेरा इज इन हर लाइफ, इन हिज लाइफ. क्या मतलब है उसका, वो सवेरा के बारे में इतना सोचता है. नॉल, दैट वॉज नॉट लव, दैट वॉज नॉट अफेक्शन, दैट वॉज नॉट अट्रैक्शन, बट वॉट वॉज दैट. When he was with Radhika, still he was thinking continuous thinking with the full of his mind of Savera. सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, और मैं यहाँ ही एंड करना चाहूँगी. फिर राधिका को रियलाइज़ होता है कि जो रायन है वही ले है, एंड नाउ व्हाट शी डू. You, for that, what she did, you have to read this book and don't pick it up if you are emotionally connected to the books. जब आप emotionally connect हो जाते हैं बुक से, so जो उनके साथ हो रहा होता है वो आप फील करते हैं, yeah, I'm also not happy. If the novel person is not happy, then you are not also happy. So don't pick the book. But if you are just got interest in the twisting plots, then this is the right book to have a twist plot novel in your bookshelf. So if you like the video, then please thumbs up to my video, and if you haven't subscribed yet, then please subscribe to my channel. And thank you for subscribing, and thank you for watching also, and still stay tuned till the next video I upload. Thank you for watching. Till then.